हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल बुलिश मार्केट। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो कंपनी वाटर सेक्टर से बिलोंग करती है। एंड जैसा कि आप जानते हैं वाटर सेक्टर इज गोइंग टू बी ए मेगा बिग थिंग। सबसे पहले हम समझते हैं इसके कुछ न्यूएंसेस, कुछ बातें एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो सबसे पहले पीपल सेज दैट कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होगा वो कुड बी ऑन वन ऑफ द मेन रीजन कुड बी अ वाटर। वाटर इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एंड हमें पता है if we are able to that is survive in the world is because of the water, or we can say especially a drinking water. I want to say some that is data regarding a water problem. So India is the home of about 17% of the world population, but has only 4% of the world freshwater resources. In India, per capita water ability is around 1100 cubic meter against the globally recognized threshold water stress of 1700 cubic meter per person. Niti Aayog predict 21 cities will face groundwater storage by 2030, affecting 100 million people. And whereas the states in India, some states like Maharashtra and Punjab are the water deficient state, but water consuming crop like sugar canes and paddies that they are grown there. For the growing nation, and we are talk about the where the India is in a growing path, so we need a manufacturing industries and a new age industries, new and manufacturing industries like semiconductor business that need waters. So that's why it is important to know about this industry. जहाँ तक कि हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो गवर्नमेंट बजट एलोकेशन रिगार्डिंग वाटर wastewater management. So it is government is doing something some capex that is in 2022 91,000 crore capex were done by the government, whereas in 2023 83,000 crore capex done by the government, whereas in 2024 it is increased up to that is 1 lakh 7,000 crore for the water infra. Government also launched some schemes like Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrut, and Atal Bhujal Yojana. So अगर हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में दैट इज गोइंग टू बी अ मेगा थीम, क्योंकि हमें वाटर की बहुत ज़रूरत है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन नॉट ओनली इन इंडिया एंड इफ यू टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, तो वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर की वो शॉर्टेज है। आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वही वेस्ट वाटर जैसे सीवेज वाटर हो गया और जो भी वेस्ट वाटर हो गए, तो उस वाटर को अगर कोई कंपनी रिसाइकिल कर रही है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ मच बेटर, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है। जैसे कि अभी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग में इट इज कम्स इन वाटर रिसाइकलिंग ऑल्सो, जहाँ पे हम टायर रिसाइकलिंग एंड ई वेस्ट रिसाइकलिंग की बात करेंगे, वहाँ पे दैट इज वाटर रिसाइकलिंग इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो जिस जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड, जिसका अभी रिसेंटली में आईपीओ लिस्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम उस कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं, तो हम उसके फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो ये कंपनी को मैंने यहाँ पर स्क्रीनर में ओपन कर लिया है एंड वी जस्ट नाउ गोइंग टू चेक इट आउट about what company is doing. So that is company is established in 2009. Enviro Infra Engineer is engaged in designing, construction, operation and maintenance of water and wastewater treatment plant and water supply project for the government agency and entities. तो मेनली कंपनी जो काम कर रही है दैट इज इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। देन द बिजनेस प्रोफाइल, Enviro Infra Engineering Limited specializes in designing, construction, operation, and maintaining water and wastewater treatment project and water supply scheme project for the government bodies। तो गवर्नमेंट के लिए मेनली कंपनी काम कर रही है, मोस्टली गवर्नमेंट के लिए। Their project includes sewage treatment plant, common effluent treatment plants, and water treatment plant aligned with the government initiative like Amrut, Jal Jeevan Mission, and Namami Gange. And the company primarily operates through EPC एंड HAM कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं EPC, तो आप समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। वेयर HAM मॉडल क्या होता है कि HAM that is hybrid annuity model is a combination of two model, that is the EPC and the BOT, that is the build operate transfer मॉडल। तो HAM मॉडल में क्या होता है कि वी जस्ट बुल्ड एसेट एंड एसेट को अपने बैलेंस शीट पे लेते हैं, देन ऑपरेट एंड वी जस्ट अर्न एन्युटी इनकम एंड देन डाइवेस्ट। Whereas that is the bot model, we just talk about in bot model we just build a set, then operate and then dispose of। तो वहीं पे एक वर्ड और यहाँ पे दिया होता है, that is a common
Effluent treatment plant. What are that common effluent treatment plant? So CETP, that is a process, is a treatment facility that treat industrial waste to achieve a high level of metal removal. तो वहाँ पे भी ये कंपनी काम करती है. कंपनी की जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात कर लें तो EIEL ऑपरेट इन द मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो सम दे आर एग्जीक्यूटेड. तो मेनली किस कितने कितने सिटी में है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल 6 सिटीज़ में दे आर राइट नाउ ऑपरेट कर रहे हैं. एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट की बात कर लें तो एज ऑफ June 30, 2024 द कंपनी हैज़ डेवलप्ड 28 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट across India over the past 7 years. This includes 22 projects with the capacity of 10 MLD. तो यहाँ पर 10 MLD और मोर स्प्रेड अक्रॉस द गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़. ऑफ दीज 28 प्रोजेक्ट वर एग्जीक्यूटेड इन कोलैबोरेशन विद जीवी पार्टनर. तो जीवी पार्टनर के साथ इन्होंने यहाँ पे इस जो भी प्रोजेक्ट है उनको काम किया है. तो अब हम यहाँ बात करें व्हाट इज MLD. दैट इज MLD इज अ मेगा लीटर पर डे. तो 1 मेगा लीटर पर डे इक्वल टू 1000 KLD, दैट इज किलो लीटर पर डे. तो इनके यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट हो गए STPs, CETPs एंड स्वेज सिस्टम्स अंडर द अमृत एंड नमामि गंगे. And HM project like 60 MLD STP at Mathura and 63 MLD at setup at Bareilly. That these are the इनके major project हो गए. ऑर्डर बुक्स हो गई. टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू 2341 करोड़, which is 2.6x of its FY24 रेवेन्यू. अगर ब्रेक डाउन की बात करते हैं तो EPC से 13,395 करोड़, जॉइंट वेंचर के साथ 1,276 करोड़, वेयर एज HM प्रोजेक्ट के साथ 376 करोड़ यहाँ पर इनका आ रहा है. बट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो OEM से यहाँ पर कंपनी का 740 करोड़ रुपए आ रहा है. दैट इज सस्टेनेबिलिटी फोकस. कंपनी की मेनली 3 सब्सिडरीज हैं. वन इन बरेली, अदर इन मथुरा एंड अगली है शाहजहाँपुर, सहारनपुर में, सॉरी. एंड कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू है दैट इज 58.48% इज कमिंग फ्रॉम द वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट, 38.22% फ्रॉम द वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट एंड 3.32 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर सोर्सेज. तो मेनली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे कंपनी को पेमेंट प्रॉब्लम रहती है. तो यहाँ पे हो सकता है कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ पे निगेटिव रहे. तो ये तो चलो चेक कर लेंगे. तो यहाँ पे ये इनका यहाँ पर दे रखा है इनके बरेली के प्लांट के बारे में एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड कंपनी ने यहाँ पे कुछ 650 करोड़ रेज किया है. तो जो रेस करना है उसमें फ्रेश इशू है वो 572 करोड़ का है. मतलब फ्रेश इशू मतलब जो कंपनी अपने यहाँ पे कंपनी में या सब्सिडरी में लगाएगी वो 572 करोड़ है. अदरवाइज जो रुपए बच रहे हैं दैट इज 30, दैट इज 28 + 50, दैट इज 78 करोड़ वो कंपनी के प्रमोटर ले जाने वाले हैं अपने शेयर बेच के. तो यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या इन्होंने यूज़ करेंगे 572 करोड़ का. तो वो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली बता रखा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्फ्यूजन ऑफ फंड इन द सब्सिडरीज. तो सब्सिडरीज में भी ये कुछ रुपए लगाने वाले हैं. दैट इज इन मथुरा में जो सब्सिडरीज है वहाँ पर. एंड रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग, कुछ लोन ले रखा है वो पे करेंगे. फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कवर सम फाइनेंशियल्स. तो आपने देख ही लिया कंपनी कितनी पुरानी है, 2009 में स्टेब्लिश हुई है एंड कंपनी क्या क्या काम कर रही है एंड दे आर वर्किंग इन अ मेजर सेक्टर्स. तो कंपनी का मार्केट 5000 टर्न. तो कंपनी की स्मॉल कैप कंपनी है. करंट प्राइस 304 रुपीज़ चल रहा है. वेर एज हाई कंपनी लगाया 392 का, लो लगाया है 205 का. कंपनी का जो पी है दैट इज 50.1. कंपनी का जो भी 50.1 चल रहा है. वेर एज इंडस्ट्री भी 32.8. तो कंपनी चेक कर लेते हैं इसके पीर्स के साथ कंपेयर करके. तो इसका जो पीर्स हैं वो आई थिंक जैसे EMS हो गया. तो EMS हम लोग टाइप करते हैं एंड वी जस्ट गेट टू नो कि इनका पी क्या चल रहा है. तो EMS का चल रहा है 27.7, वेयर एज एनवायरो इंफ्रा का जो पी चल रहा है दैट इज 50.1. तो यहाँ पर कंपनी मुझे लग रहा है इस EMS के कंपैरिजन में ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रही है. वेयर एज अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो वाटेक बाबा के बारे में अगर हम टेक चेक कर लेते हैं तो वाटेक बाबा का पी यहाँ पे चल रहा है दैट इज 39.6. ये भी उस कंपनी के मुकाबले में कम है. डेट इज एनवायरो इंफ्रा के मुकाबले में कंपनी कम है. कंपनी एनवायरो इंफ्रा हायर ट्रेड कर रही है ना. वेयर एज आयन एक्सचेंज का भी चेक कर लेते हैं. तो आयन एक्सचेंज का अगर देखते हैं तो 43.9. तो मतलब जो मेनली इसके पीर्स हैं उन सबसे कंपनी अपने हाई उस पर हाई पी पे ट्रेड कर रही है. तो कोई नहीं, कंपनी का सेक्टर ऑफ बजिंग है. तो कंपनी 50 मतलब
पी पे ट्रेड कर सकती है, कोई इतना बड़ा इसमें इशू वाली बात नहीं है। कंपनी के अदर फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। कंपनी बुक वैल्यू नहीं दे रखी है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, आर ओ सी 47.4% है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो वो 47.4% है। तो आर ओ सी अगर इतना जाना है तो हम लोग चेक करते हैं डेट कितना है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का जो डेट है तो प्लेस परसेंटेज ग्रोथ, कंपनी का जो डेट है वो आपको यहाँ दिख जाना चाहिए। कंपनी का डेट यहाँ पे नहीं दे रखा है। एंड चलो अभी हम लोग आगे नीचे चेक कर लेंगे ना, दे रखा है यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेट 1.05। तो जो डेट है कंपनी के बाद वो कंपनी का ज़्यादा है। फिर अगर हम और कंपनी का चेक करते हैं, जैसे आयन एक्सचेंज का डेट हो गया, डेट इज 0.20। वेर एज वाटेक बाबा का अगर हम चेक कर लेते हैं डेट, तो वाटेक बाबा का डेट 0.22, मतलब कंपनी जो इस सेक्टर में काम कर रही है उनका जो पी है वो कम है, वेर इस कंपनी का पी ज़्यादा है। और 1 से ज़्यादा पी वाली कंपनी को वैसे भी हम लोग निगेटिव उसमें देखते हैं। कंपनी का जो आर ओ आई सी है दैट इज 31.8 रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि वो कंपनी का जो आर ओ आई सी है वो कंपनी का इस समय रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड वो इसमें कंपनी का 31.8 है, जो कि 15 से ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट 19.2 है, इट इज़ ऑल्सो गुड। इंटरेस्ट कवरेज 7.53, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। ई पी एस 7.92, इट इज़ क्वाइट गुड। फेस वैल्यू 10 की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू इज 10। एंड प्लेस परसेंटेज है नहीं। प्राइस टू कैश फ्लो दैट इज -77, ठीक है। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हो तो यहाँ पे निगेटिव हो सकता है। इंडस्ट्री का 32.8, प्रॉफिट बोर्ड इज क्वाइट गुड 93.5, पैक रेशियो दे नहीं रखा है। नंबर ऑफ एक्टिव इज 17.6 सी आर। करंट रेशियो एक से ज़्यादा होना चाहिए है। क्विक रेशियो भी एक से ज़्यादा होना चाहिए, 1.46 ये भी है। एसेट टर्नओवर दैट इज 1.31, दैट इज क्वाइट गुड। इन्वेंट्री टर्नओवर इज 18.8, इट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। जितना ज़्यादा हो एसेट टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर उतना अच्छा है। बस कंटीजेंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो कंटीजेंट लायबिलिटी यहाँ पर 360 करोड़ की कंपनी दिखा रही है। नाउ वी चेक द प्रोस नहीं दे रखे हैं, कौन में दे रखा है कि वर्किंग कैपिटल डेज वो इंक्रीज हुए हैं। तो वर्किंग कैपिटल डे इंक्रीज होना मतलब कि इतने दिन लगते हैं उसके बाद ही कंपनी के हाथों में रुपए आता है काम करने के बाद। तो दैट इज 95.7 डेज। नाउ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंपनी की सेल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 120, 205 एंड 213। तो क्वार्टरली वाइज कंपनी की सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। वेयर एज ओपीएम चेक कर लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो दैट इज 19%, 25%, मतलब कंपनी अप्रॉक्स मान लीजिए आप 23% के ओपीएम पे ट्रेड कर रही है। वेयर एज अगर उसी सेक्टर की जो और कंपनी है अगर हम वहाँ पे उनका चेक करते हैं तो वो कंपनी जो ओपीएम मेंटेन करके रखी है दैट इज 13, दैट इज अगर हम इनका एवरेज करें 13 तो ये क्वाइट गुड है। वेयर हम अगर ईएमएस का चेक कर लेते हैं तो चेक करते हैं उनका ओपीएम कितना चल रहा है। तो यहाँ पर जो ओपीएम है दैट इज 36 या एक एवरेज 24% ओपीएम मान लीजिए आप यहाँ पे। तो उस मुकाबले में यहाँ पर इनका अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ओपीएम मेनली ज़्यादा ही होना चाहिए। इतना ज़्यादा होगा मतलब उतना कंपनी यहाँ पर मार्जिन कमा रही है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टरली वाइज गेटिंग इंक्रीज 12, 30 एंड 36, सो इट इज़ क्वाइट गुड। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयरली वाइज इंक्रीज हो रहा है 5, 9, 55, 106। तो यहाँ पे कंपनी सीधे डबल हो रही है ईयरली वाइज। तो आप यहाँ पे चेक करें 5 से 9, 9 से सीधे यहाँ से सीधे यहाँ पे 5 गुना हुई, 5 गुना का सीधे दुगना हो गई यहाँ पे कंपनी। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट तो कंपनी रिमार्केबल कमा रही है एंड इसीलिए कंपनी का आर ओ सी एंड आर ओ ई ज़्यादा थे। फिर हम बात कर लेते हैं रिजर्व की बैलेंस शीट में। तो रिजर्व कंपनी के पास है 222 सी आर, जो कि यहाँ पे पिछले साल 155 था। वेरस बोरोइंग कंपनी की, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी की बोरोइंग भी उसी हिसाब से इंक्रीज होती चली आ रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोइंग 234 से 376 यहाँ पे पहुँच चुकी है। नाउ वी जस्ट चेक द कंपनी CWFP दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो कंपनी यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं लगा रही है। Now we just check the cash flow statement, that is cash from operating activity, it is in negative। तो यहाँ पे लग रहा है कि क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट के साथ टाई अप के साथ काम करती है तो रिसीवेबल मेन जो रुपए आता है
उसका हो सकता है कंपनी गवर्नमेंट से जो लेती है तो हो सकता है एक दो महीने लेट हो, तो इसलिए यहाँ पे रिसीवेबल आने में दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे दे दिया भी रखा है कि रिसीवेबल -48, इन्वेंट्रीज में भी -25, तो यहाँ पे ये कंपनी की दिक्कत है। कैश ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना गलत होता है। कैश ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो -139, तो यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कहाँ पे, टू बाइंग फिक्स्ड एसेट परचेज, तो वो फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ निगेटिव वन। तो कोई अभी इतना खास चारा नहीं है क्योंकि कंपनी अभी इनिशियल फेज में है, तो ये थोड़ा मोड़ा चलता है क्योंकि कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करती रहती है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट गुड। वेराज अगर हम रेशियोज की बात कर लेते हैं तो कंपनी का डेटर डेज वो कम हुए हैं, डेट इज 61 थे तो 52 है, तो कंपनी डेटर डेज कितने दिनों बाद कंपनी के पास, मतलब काम करने के बाद कंपनी के पास रुपया आ रहा है, तो वो इतने दिनों बाद ही आ रहा है। इन्वेंट्री डेज, तो इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। वेर एज डेज पेबल की बात करें तो ये कंपनी का डेज पेबल है दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, सो इट इज ऑल्सो गुड। Whereas the cash conversion cycle, it is a negative. What does the negative cash conversion cycle shows? तो negative cash conversion cycle बताता है कि the company receives money from our sales before it pays its supplier. The company is financial healthy and has a strong operation efficiency. मतलब सेल करने से पहले ही कंपनी के पास रुपया आ जा रहा है, तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल दिखाता है विच इज़ नेगेटिव, तो ये एक हेल्दी पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल डेज बता रहे थे कि वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुआ है, दैट इज 96, मतलब वर्क काम करने के बाद कितने दिनों बाद पैसा आता है, कितने डेज बाद रुपये आता है, दैट इज 96। चेक कर लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, दैट इज 70.02%, बहुत अच्छी है। एफ आई आईज ने भी कुछ होल्ड 2.67% होल्ड कर रखा है, डी आई एज वेर एज 10%, पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पे 16% है। तो वेर एज हम प्रोमोटर्स को देखते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ तो 70% है, ये तो बोनस पॉइंट है। तो वेर एज यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ दे रखे हैं, तो वही चलिए छोड़िए यहाँ पे क्योंकि एनुअल रिपोर्ट नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कंपनी की वेबसाइट पर एंड वी कुड चेक ऑन व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग। तो यहाँ देख लेते हैं इन हाउस डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन टीम, ये उनके कुछ जो उनकी सब्सिडरीज हैं या जो उनका मेनली जहाँ पे कंपनी काम कर रही है वो एरिया की पिक्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखा है व्हाट वी डू एट एनवायरन इंफ्रा इंजीनियरिंग, वी स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन अक्रॉस इंडिया with a focus on excellence and innovations. We deliver end-to-end service that meet the critical needs for both the municipal and industrial sector. मेनली इनका ये काम है, वी ऑफर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई सिस्टम, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड अदर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। तो जो सेक्टर है जहाँ पे कंपनी काम करी है इट इज़ क्वाइट गुड एंड आने वाले समय में यहाँ पर कुछ मेगा ट्रेंड देखे जा सकते हैं। कंपनी की प्रेजेंस यहाँ पे कुछ उन्होंने 8 स्टेट दिखाए हैं अपने, कर्नाटका, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड नॉट 8 एंड 9 है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कुछ इनकी और न्यूएंसेस। तो यहाँ पर फेल टू डाउनलोड पीडीएफ दिखा रहा है, बट विल ट्राई इट कि यहाँ पर कुछ उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन दे रखे हैं। यस, दैट्स इट, दैट एनवायरन इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंपनी का ओवरव्यू यहाँ दे रखा है कि कंपनी किसके द्वारा लेड करी जा रही है, दैट इज guided by the visionary leadership and the founder late C. R.K. Jain, the company has been entrusted to a capable hands for the second generation entrepreneurship who is committed to making the world a more environmentally sustainable place है। तो इनके द्वारा कंपनी यहाँ पर, इनकी गाइडेंस में कंपनी यहाँ पर शुरू की गई। इंडस्ट्री का ओवरव्यू बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि इंडिया इज हेवनली डिपेंडेंट ऑन रेन एंड फॉर इट्स वाटर नीड्स, हाई deterioration of water quality driven by the incorrect disposal of chemical residues by the production sectors, and 600 million people in India currently face acute water shortage। तो यहाँ पे इन्होंने shortage को दिखाया हुआ है why it's must need to that is recycle water or a treatment of proper treatment of water and all those things, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेरएज इन्होंने यहाँ पे कुछ अपने विज़न दे रखा है एंड टू एसेंट टू रिवोल्यूशनाइज द वाटर कंजर्वेशन, एम्पावरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस, एडवांसिंग नेशनल वाटर एसेबिलिटी, तो आप यहाँ पे मेनली चेक कर सकते हैं। ये इनकी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं जैसे इन्वायरमेंटल स्टूडशिप, एफिशिएंसी एंड इनोवेशंस एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट,
community engagement and all those things. ये core values बता रखी हैं and what the service they are offering. तो STP that is sewerage treatment plant, CETP common effluent treatment plant, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स हैं वहाँ से वो उसको रिमूव करते हैं, एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दैन सीवेज सिस्टम, दैन वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट, WSSP। ये उनके मेनली फाउंडर हैं, लेट सी RK जैन। को फाउंडर में बात करें तो मिस्टर संजय जैन एंड मिस्टर मनीष जैन, दीज आर द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स में आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो आप मेनली इनकी क्वालिफिकेशन आप चेक कर लेना यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे, तो आपको मेनली पता चल जाएगा। इनका रेवेन्यू मॉडल है कि कैसे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, फिर जो इनका मेनली रेवेन्यू जनरेट जहाँ जहाँ से होता है। वेयर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो कितना टाइम लगता है किसी जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं उसको करने में, एंड देन फाइनली रुपए जनरेट करने में। तो बिडिंग होती है, फिर दैट इज होल बिडिंग, उसके बाद स्टार्ट डेट, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रायल रन्स होते हैं, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये होता है। तो आफ्टर डैट मतलब इन सारे काम में 15 साल तक लग जाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। फ्यू टेक्नोलॉजी यूज बाय STP CTP, तो इन्होंने बताया कि जो मेनली STP एंड CTPs हैं उनके लिए किन किन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं टू गेट अ ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो ये कुछ प्रोसेस होता होगा जहाँ से ये यहाँ पर इसको वाटर को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके की माइलस्टोन की बात कर लें तो 1991 में कंपनी के बारे में, पार्टनरशिप फर्म फाउंड फॉर द वाटर ट्रीटमेंट कंसल्टेंसी बिजनेस, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड OM सर्विस। 1999 में इन्होंने EPC के काम में इन्वॉल्वमेंट की। ये सारा दे रखा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या अवार्ड मिले, क्या है, कब, इन्होंने सब अभी तक का सारा बता रखा है अप टू 2024। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस, तो टोटल 9 स्टेट में प्रेजेंस है। 955 एम्प्लॉय काम करते हैं। 14 साल का एक्सपीरियंस है। टीम वर्क एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज, तो सम प्रोजेक्ट विच दे हैव कमेंस्ड, तो उनकी बात कर लेते हैं। जैसे बरेली में इन्होंने किया 20 MLD मेगा लीटर पर डे STP प्रोजेक्ट था। एंड ये सारे प्रोजेक्ट पानीपत, बरेली और बीकानेर, कोटा, जहाँ जहाँ इन्होंने किया है तो वहाँ वहाँ इन्होंने सारा दे रखा है। ये इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं। टीम की बात करें तो टीम कंसिस्ट ऑफ 955 प्लस एम्प्लॉय एंड 166 इंजीनियर्स एंड 14 प्लस का इनका पास क्या है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव टीम है एक्सपीरियंस। यहाँ पे 14 साल तक का से ज़्यादा का ही इनकी टीम, जो मेन जो टॉप लेवल टीम है उनके पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ओवरव्यू जहाँ पे इन्होंने अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर रखी है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज ओवरव्यू एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जहाँ तक की बात की जाए तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी दिखाए हैं जो मैं आपको पहले ही बताती हूँ। जल जीवन मिशन हो गया, अमृत स्कीम हो गई, या फिर अटल भूजल योजना हो गई। तो वहाँ पे गवर्नमेंट इज सिग्निफिकेंटली टेकिंग इनिशिएटिव टुवर्ड्स प्रमोटिंग द वाटर मैनेजमेंट। तो कंपनी क्योंकि आने वाले टाइम में जो इस टाइप की कंपनी है उनका ज़्यादा प्रमोट होंगी, ज़्यादा उनको ज़्यादा, क्योंकि वाटर वेस्ट होगा तो वाटर वेस्ट मेनली क्या है कि उनको रिसाइकिंग करने के लिए कोई ना कोई कंपनी आएगी। तो एक वाटर वेस्ट ही नहीं हो गया, मतलब और बहुत सारे वेस्ट हो गए, जैसे ई वेस्ट हो गया या फिर तुम्हारा टायर वेस्ट हो गया। तो इस टाइप में टायर रिसाइकिलिंग हो गया। इस सेक्टर में जो भी कंपनी काम करती है उनका ब्राइट फ्यूचर है एंड दे कैन जनरेट अ मल्टीपल रिटर्न्स। तो आप इन टाइप की कंपनियों को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। वेराज जो इनके पीर कंपैरिजन है, जहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनीज लाइक वाटेक बाबा और द EMS और द आयन एक्सचेंज, दे आर द सिग्निफिकेंट पीर कंपैरिजन। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वो कंपनी भी इन सेक्टर्स में है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करना, जानना, समझना विच कंपनी हैज़ अ गुड मॉडल, वो आप चेक करना, उस पर स्टडी करना सिग्निफिकेंटली एंड देन आप इन्वेस्ट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।